unto me, so I speak. यीशु ने यूहन्ना के इंजील 12 की 49 और 50 में के अंदर खुद कहा है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझको हुक्म दिया कि क्या कहूँ और क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि इसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है, पर जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। आमीन। Amen. This statement by Jesus is a perfect fulfillment of Jehovah God's promise to Israel. यीशु का ये बयान इस्राएल से यहोवा खुदा के वादे की मुकम्मल तकमील है। In Deuteronomy 18, verses 17 through 19, and Jehovah said unto me, they have well said that which they have spoken. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. आइए कलाम मुकद्दस में से 18वां बाब और उसकी 17वां आयत से लेकर 19 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं तो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के वाणी में से तेरी मानी एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उससे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को सुनेगा जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा, ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। आमीन। Amen. Jehovah had already given a law to Israel through Moses. So why was Jehovah promising another prophet that would be like Moses and would speak more commandments from God? Because God had also promised Israel that when Israel rejected God's son, God would reject them and make them jealous. यहोवा ने पहले ही मूसा के जरिए इस्राएल को एक कानून दिया था। यहोवा क्यों एक नबी का वादा कर रहा था जो मूसा की तरह होगा और खुदा की तरफ से मसीह काम बोलेगा, क्योंकि खुदा ने इस्राएल से ये भी वादा किया था कि जब इस्राएल खुदा के बेटे को रद्द करेगा तो खुदा उन्हें रद्द करेगा और इस्राएल को गैरतमंद बनाएगा। Deuteronomy 32:21. They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those that are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation. इस नववेदिक का भाव 21 से है, जब हम बताना करते हैं तो वहां पर लिखा है, उन्होंने सील के बाद जो यहोवा ने मुझे गैरत अपनी बातल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया, सब मैं भी उनके जरिया से जो कोई उम्मत नहीं उनको गैरत के नादान के जरिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा। Amen. The Mosaic Law was a perfect law for the nation of Israel. It worked very well for them living in one country with one temple and all supposed to be obeying God and serving God. मूसी कानून इस्राएल की कौम के लिए कामिल कानून था। उसने उनके लिए एक ही मुल्क में रहने, एक हरकत के साथ और सभी खुदा की फरमाबरदारियों की खिदमत करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। But because they rejected God, God commanded Jesus to give a new law, a law that is designed for everyone, no matter where they live, and no longer dependent on a single temple, but now each believer is the temple of God, and each believer is to worship God in their heart, their spirit. लेकिन चूंकि खुदा को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, खुदा ने यीशु को एक नया
देने का हुक्म दिया, एक ऐसा कानून जो हर एक के लिए विदा किया गया, चाहे वो कहीं भी रहते हो, अब किसी हैकल का मनुष्य न हो, लेकिन अब हर ईमानदार खुदा की हैकल है और हर ईमानदार को अपने दिल में, अपनी रूह में खुदा की इबादत करनी है। John 4:21 through 24. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when neither in this mountain nor in Jerusalem shall you worship the Father. Ye worship that which ye know not. We worship that which we know, for salvation is from the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. For such doth the Father seek to be his worshippers. God is spirit, and they that worship him must worship in spirit and truth. यूहन्ना के बाद उसकी 21-24 आयत का हम मुताला करते हैं, तो यीशु ने कमरी से कहा है, लिखा है, यीशु ने कहा है, और मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बात की प्रस्तुत करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि विचार यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है उनके और यही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुत शुरू सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढते हैं, खुदा रूह है और जरूर है उसकी परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे। आमीन। Amen. Now we have a new law. Under the Mosaic law, Israel was supposed to act as God's army. अब हमारे पास एक नया कानून है, मूसवी कानून के तहत इस्राएल के खुदा की फौज के तौर पर काम करना था। They were commanded to kill the enemies that God identified. They were supposed to be a godly government and were commanded to punish sinners. उन्हें दुश्मनों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, जिनकी शनाख्त खुदा ने की थी, वो एक खुदाई होने वाले थे, उन्हें अपनी गवर्नमेंट को सजा देने का हुक्म दिया गया था। This worked great for that nation. But now the church is not a government, but is commanded to be subject to the governments, wherever they live. And we are told that God uses governments to protect his followers. उसने सबको दिया, लेकिन अब चर्च एक हुकूमत नहीं है, लेकिन हुकूमत दिया जाता है तो वो चीज़ें भी हुक्म दिया जाता है तो वो चीज़ें भी रहे, हम सबको कहता भी रहे, और हमें बताया गया है कि खुदा अपने पैरोकारों की मदद के लिए हुकूमतों का इस्तेमाल करता है। Romans 13:1 through 4. Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Therefore he that resisteth the power withstandeth the ordinance of God, and they that withstand shall receive to themselves judgment. For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. And wouldst thou not have fear for the power? Do that which is good, and thou shalt have praise from the same. For he is a minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is a minister of God, an avenger for wrath to him that doeth evil. और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम से पढ़ते हैं, लिखा है, का आबेदार है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो भी हुकूमत का सामना करता है वो खुदा का इंतजार का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा का
क्योंकि नेकोकार को हाकिम से काम नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर हाकिम से निकाल देना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का कादिर है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का कादिर है उसके गजब की बदकार को सजा देता है। आमीन। Amen. In the new law, Jesus commands his followers to turn the other cheek, to not resist those that persecute us, to love your enemies. नए कानून में यीशु अपने पहले देखता है कि वो दूसरे गाल को भी मोड़ दे। हम सताने वालों के खिलाफ मुजाहमत ना करें, अपने दुश्मनों से प्यार करें। In Matthew 5:43 through 45, ye have heard that it was said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies and pray for them that persecute you, that you may be sons of your Father who is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने पाप के जो आसमान पर है उनकी करो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेक दोनों पर चमकाता है और रात को दोनों पर नींद बरसाता है। आमीन। Amen. This means we must have faith that God will protect us. We're having some lag, I see. In Romans 12:17 through 21, it says, render to no man evil for evil. Take thought for things honorable in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, be at peace with all men. Avenge not yourselves, beloved, but give place unto the wrath of God. For it is written, vengeance belongs to me. I will recompense, saith the Lord. But if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him to drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. रोमियो 12 की 17 आयत से लेकर 21 आयत तक कलामी मुकद्दस में जो हम देखेंगे, लिखा है बदी के वक्त किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब उनके के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ नबीसो, अपना इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके साथ और के गुनाहों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर वारी करो। आमीन। Amen. Here, Paul instructs us to make sure our actions are peaceable. We cannot control how our enemy lives with us, but we can control how we live with our enemy. यह इस बात यकीन बनाने की हदायत करता है कि हमारे ईमान पूर्ण हो। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारा दुश्मन हमारे साथ कैसे रहता है, लेकिन हम अपने दुश्मन के साथ कैसे रहते हैं इस पर हम काबू पा सकते हैं।
The scriptures record many situations where the believer was peaceful, but the enemy was not, like Jesus' crucifixion and Stephen's murder and all of the martyrs. लेकिन दुश्मन और अमन नहीं थे। का कत्ल देख ले और तमाम जो शहीद हुए उनको आप देख सकते हैं कि उन्होंने आगे की शपथ नहीं किया बल्कि It would seem to the world that Jesus and Stephen and all of the martyrs were defeated. But God's promise is not to prevent us from ever dying. God's promise is to give eternal life to those that obey him. दुनिया को ऐसा लगता होगा कि यीशु और और शहीद होने वालों को शिकस्त हुई है, लेकिन खुदा का रास्ता में मरने से रोकने के लिए नहीं है। खुदा का रास्ता उन लोगों को अपनी जिंदगी देने का है जो उसकी पैरवी करते हैं। The commandment to be a peacemaker is very clear in Christ's teachings. Thank you for this opportunity to share Christ's teachings. May God bless and protect us. But even if we lose this life, we have a blessed hope of eternal life. Amen. मसीह की तालीमात को देखने के मौके के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपका भला करे और हमारी हिफाजत करे। लेकिन यहाँ तक कि अगर हम ये जिंदगी खो देते हैं तो हमारे पास एक सच्ची जिंदगी की बाबरकत उम्मीद है। आमीन। It was good to see you again. Bye-bye. यीशु मसीह मूसा की मानन क्यों नबी है और फिर खुदा के बड़ी वसाहत के साथ बताया है कि मूसी कानून जो है